مطلب کیا ہے، رب کا مطلب کیا ہے، باری تعالیٰ کا مطلب کیا ہے، خداوند کریم کا مطلب کیا ہے۔ باری تعالیٰ، یہ تعالیٰ یہ نہیں بھائی، تعالیٰ تے این اوپر الف پھر لام پھر اوپر کھڑی تعالیٰ۔ بادشاہ فقیر قلندر فرماتے ہیں جب تم اس میں جلی سے واقف ہو کے تسبیح کرو گے تمہارے اندر روحانیت آئے گی، پھر ہمیں بھی نہ پکارو، تم خود اتنے طاقتور ہو جاؤ گے، لفظ کن کہو گے بیمار صحت مند ہو جائے گا۔ اپنی پلیدی پہلے دور کرو، جلدی سے تسبیحاں گڑے جا رہے ہیں، لفظوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اوپر سے ایک بندہ آیا، میرا بھائی بیٹھا، اگر تمہیں پتا ہوگا یہ ایم این اے ہے تو آپ احترام میں سیٹ چھوڑیں گے، جسے پتہ ہی نہیں ہے وہ تو بیٹھا رہے گا، اور وہ جو ایم این اے صاحب ہے وہ کہیں گے اس بچے کو تمیز نہیں ہے، جسے پتہ ہی نہیں اللہ کا معنی کیا ہے، ڈھونڈتا ہے، تسبیح گڑے جا رہا ہے، تو اللہ کہے گا نہیں اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کو تو موسیٰ کلیم اللہ نہیں دے سکا، مولوی عبداللہ کہاں؟ لن ترانی تو مجھے نہیں دے سکتا، شجرے کی طرف دیکھ، شجر کی طرف دیکھا، لفظ سے ندا آئی تھی، کلیم اللہ وہاں تک نہیں جا سکا تو مولوی کیسے جائے گا؟ اور پیغمبر کی حدیث ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر مجھے نہ بناتا تو کوئی شاہ ہی نہ بناتا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا میرا محمد جب میں نے چاہا کنت کنزا مخفیا وحببت ان اعرف وخلقتک یا محمد، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں میں نے تجھے بنا دیا اور میں تیرے ذریعے سے بندوں تک آتا ہوں، اس لیے کہتا ہے قل هو اللہ احد، محمد کہہ دے ان سے، تو کہہ کہ میں احد ہوں، تو جو اللہ محمد کے بغیر بندوں تک نہیں آتا، یہ بندے محمد کے بغیر خدا تک کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اچھا بھائی یہ بچے نے کلندر، لفظ کلندر نہیں ہوتا بھائی، کل اندر، کل اندر، کلندر کہتے ہیں جو ہاتھ میں ٹکٹکی لے کے بجاتا ہے، پھر وہ بچہ سامنے یا ریچھ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ناچتا ہے، یہاں پہ اسٹک رکھ لیتا ہے، میں اگزامپل پہ رچو صاحب بیٹھے تو بچے آٹا دیتے ہیں اسے پیسہ دیتے ہیں، وہ جو ریچھ ڈگی پہ نچاتا ہے اسے کہتے ہیں کلندر، کلندر، وہ لام سے ہے۔ یہ جو سیون والا یہ ہے کل اندر، کل اندر، 5 حرف ہیں، کاف لام نون دال رے، جس کے اندر 5 تن کا علم ہو اسے کل اندر کہتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد علی محمد، بارہ دیگر ہدیات رکھ دیجیے۔ اللہم صلی اللہ محمد علی محمد۔ جو سب ہے تو بچوں ماشاءاللہ مجھے کہہ رہے ہیں اللہ کو سلامت رکھے۔ پھر خداوند کریم نے کہا پارہ 17 سورہ الحج آیت نمبر 4 کتب علیہ فإنہ من یضلہ و یہدیہ الی عذاب سعیر، ہم نے ان کی پیشانیوں پر خط تقدیر سے لکھ رکھا ہے یہ گمراہ ہیں۔ ان کی پیشانیوں پر خط تقدیر سے لکھا جا چکا ہے کہ یہ گمراہ ہیں۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں التماس کی پالنے والے میرے خالق میرے مالک، تو شافی ہے تو کریم ہے تو اول ہے تو آخر ہے تو ظاہر ہے تو رحیم ہے تو رؤوف ہے، سارے اس سما تیرے لیے ہے، لیکن پیشانیوں پہ لکھا گیا ہے تو میں کسی بزم میں کھڑا ہو گیا تو آیت کی روشنی میں نے پیشانی پہ دیکھنا شروع کیا کہ کس کی پیشانی پہ لکھا ہے کہ حاضر گمراہ ہے، کہ یہ گمراہ ہے، لیکن مجھے کسی کی پیشانی پہ نظر نہ آیا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تھے جب میرے رسول اللہ نے اس آیت کی تلاوت کی، اور کتاب کا نام قاری صاحب آپ کو نظر کر رہا ہوں، کتاب ہے حب علی ڈاکٹر طاہر القادری کی، اس کا 400 صفحات ہے، صفحہ نمبر 262 پر ہے، تو پوچھا گیا جناب عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا آمنہ کے لال عبداللہ کے جان ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائے، حسنین کا واسطہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کی پیشانیوں پر خط تقدیر سے لکھا جا چکا ہے کہ یہ گمراہ ہے؟ تو پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا کہ یاد رکھو گمراہوں کے پاس تسبیحیں بھی ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی، حج بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوں گے، خمس بھی ہوں گے، جہاد بھی ہوں گے، لیکن علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس علی سے بغض رکھیں گے وہ حلالی نہیں حرامی ہوں گے۔
जनाब उस्मान का शुक्रिया, उन्होंने बज़म से फैसला दिलवा दिया कि अली का अदू हरामज़ादा होता है। अगर उस्मान ना पूछते तो हदीस कैसे पहुंचती। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए अली मोमिन है, अली का मुहिब मोमिन है। तो जनाब उमर ने क्या कहा था गदीर के मौके पर, असबख्तु या अली मौलाई व मौला मोमिन कुल्ले मोमिन आबादी। अली मुबारक को आप हर मोमिन के मौला है, मुनाफिक के नहीं। तो कम अज कम शर्फ से डूब मरो कि ना साहब को मानते हो। अगर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानते हो तो गदीर पर उन्होंने तो आके अली से कहा था बखन बखन या अली मुबारक हो, मुबारक हो। इतना तो तय हो गया गदीर में अली की यौम दस्तार बंदी पर बखन बखन मुबारक मुबारक कहना बिद्दत नहीं, सुनते उमर फारूक किस उमर को मानते हो अगर उनकी याद में तुम मुबारकबाद का एहतमाम न करो। और एक और बात कहूँ, देखिए जिससे मोहब्बत हो उसकी खुशी में खुशी होती है, उसकी गमी में गम होता है। तो बस मैं कह दूँ, मैं कहूँ चौधरी साहब से मुझे बड़ी मोहब्बत है, ऐसे है खुदा न खास्ता चौधरी साहब का कोई अजीज फौत हो जाए और मैं गाँव में हूँ और मुझ तक इतला पहुँच जाए तो मैं कहूँ ठीक है जनाजे में बाद में चले जाएंगे फातह खानी, जनाजे की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक सवाल है, जब इन्हें इल्म होगा कि अलामा साहब घर पे थे, इतला भी पहुँच चुकी थी, उसके बावजूद नहीं आए, फैसला आप पे जब मैं इनसे मुलाकात करूँगा और गले मिलूँगा, इनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत होगी कि थोड़ा सा कदूरत दो कह लें, रंज कह लें, होगी कि नहीं? वो कहेंगे आपको पता था कि मेरे फलां अजीज करीबी थे, फौत हो गए, आप जनाजे में नहीं आए, कैसे मुसलमान हो? तुम्हें पता और कहते हो हमारी से मोहब्बत करते हैं, अली का यौम शहादत है। किसी एक ने ऐलान किया है? किसी एक मस्जिद से आवाज आई है? किसी ने कहा हो कि अली शियों का इमाम नहीं, कम अज कम दामाद रसूल है, हसनैन का बाबा है, बतूल का शौहर है, असहाब का मौला है, मोहम्मद का नब्त है, अल्लाह का वली है, शेर खुदा है, शाह हलाता है। आज हम तुम्हें बताते हैं, किसी ने ऐलान नहीं किया तो इसका मतलब है ये ढोंगपन है, झूठ बोला जाता है। ऐलान कर रहा हूँ, जिसके दिल में कोई खर्च हो, जहाँ चाहो मुनाजरे के लिए जहाँ किताबों के अंबार लगा दूंगा। याद रखो, मासूम ने फरमाया जो हमारी गमी में गमी का ऐलान न करे वो हमारा नहीं गैरों का है। साहब किसी मस्जिद से पूछोगे तो मुहिब्बान अहले बैत कोई एक मत करो मातम, मत चलाओ छुरियां। भाई कौन कहता है आपके मसलब और कीदे में ठीक नहीं है? बिल्कुल आप मत करें, कोई जरूरत, लेकिन मस्जिद से साउंड ओपन करके तुम्हारी फौतगी का ऐलान हो सकता है। फलां का फलां बेटा बाप माँ भाभी दुनिया से चली गई, अली के शहादत का ऐलान करते हुए मौत आती है, इसका मतलब तुम जुबान से कहते हो दिल में बुग़्ज़े अली है। दिल में बुग़्ज़े अली है। वरना दुनिया में एक मिसाल दिखाओ, कोई किसी मसलक का हो ऐलान हो तो बंदा उसके जनाजे में जाता है, या मस्जिद से रख लो, बजाय जनाजे में आने के 15 पे कॉल होती है। तो मुझे कॉल पे एतराज़ नहीं है, कॉल करने वाला ऐलान कर देता है कि उसका ताल्लुक शजरा खबीसा से है, शजरा तैयबा से नहीं है। हो जिक्र रसूल, हो जिक्र हसनैन, हो जिक्र मुस्तफ़ा, हो जिक्र असहाब किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, और बंदा काले करे, खुदा का खौफ है। याद रखिएगा, मोहब्बत की अलामत यह है जिससे मोहब्बत हो उसके साथ सलवात भेजिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद 12 देकर हदिया दरूद भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस 2-4 मिनट और बस जहन में रखिए, अली शियों के नहीं कायनात के मौला है। बोल के नाता मौला। हुसैन शियों का इमाम नहीं, जर्रे जर्रे का इमाम है। हुसैन नवाज शाह रसूल है, असहाब कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनसे मोहब्बत करते थे कि रसूल का बेटा है। वाह जी वाह। उनकी खुशी में खुशी होनी चाहिए, तभी आप मोहब्बत का ऐलान करेंगे। मैं एक बात कहूँ, यहाँ पे अगर सरदार आसफ को भी बुला लिया जाए और राणा इसहाक साहब को भी, तो मैं 2 माला लेके खड़ा हो जाऊँ, एक सरदार साहब के गले में, एक और मैं कहूँ आप दोनों से मुझे बड़ी मोहब्बत है, वोट आपके हैं।
मुझे बताइए राणा साहब मुझे क्या कहेंगे, सरदार आसफ क्या कहेंगे? वहाँ पे कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात जरूर है, जब दोनों चले जाएंगे मुझे कॉल जरूर आएगी वोट है किसका। वाह 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 उधर भी इधर भी, अगर अली वाले हैं उधर भी हैं, यहाँ भी नहीं आते। वाह 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 जी वाह, वाह जी वाह। तो किसके गले में है, किस पार्टी में है, किस जमात में है, किससे मोहब्बत है? किसी एक तरफ होने का आप ऐलान तो कीजिए, ऐसी दुरंगी मत कीजिए। अल्लाह के रसूल को मुंह दिखाना है, पता नहीं कब सांसें खत्म हो जाएंगी। खुदा के लिए ये दौरंगी नहीं होनी चाहिए। और फिर पैगंबर ने फरमाया, सुनो एक और बात कह लूँ, ये जो आप दरूद पढ़ते इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी, यसल्लूना अल्लाह को बेटा शाबाश, बहुत अच्छा, अलन नबी, अल्लाह ने सलामत रखे इनके वालिदैन को सलामत। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नाम है, नबूवत ओहदा है। SHO राणा इम्तियाज, ओके, दो अली और नबी दो हमें एक मिला के ख़त्म कर दो। अब मेरे बात ख़त्म हो गई, प्लीज़ आप मेरी तरफ देखें, कैसे साहब बैठे हैं। ये SHO राणा इम्तियाज, SHO ओहदा है, नाम इम्तियाज है। यसल्लून अला नबी, नबूवत ओहदा है। आयत में नाम मोहम्मद नहीं है, अब दरूद है नबी पर, उसमें मोहम्मद का नाम है नहीं। तो कोई कहे किस नबी पर? वाह वाह मैं दकीके घोर रहा हूँ भाई, ये काम के बाद किस नबी पर? तो जवाब क्या आएगा? वो कहेंगे भाई मुस्तफ़ा का तो नाम ही नहीं है। यसल्लून अला नबी, तो कोई कहे मैं इस रात में मूसा लेता हूँ, ईसाई कहे हम अंजीर से ईसा लेते हैं, यहूदी कहे कि हम जो है मूसा की तरफ जा रहे हैं। तो जवाब क्या होगा? चूँकि कुरान कल्बे मोहम्मद पर आया है, इसलिए आयत रसूल की तरफ जा रही है, किसी और नबी पर दरूद नहीं है। और याद रखिए इब्राहिम और उसकी आल पर है, मूसा पर दरूद नहीं है, ईसा पर दरूद नहीं है, दाऊद पर दरूद नहीं है, आदम पर दरूद नहीं है। याद रखो दरूद उस पर होता है जिसने कुर्बानी दी होती है। अल्लाह को सलामत रखे। गुसाइब का जुमला कहना भाई, बस एक जुमला सुने। अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे को 19 रमज़ान को अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम ने हालते सजदा में ज़रबत लगाई थी। हसनैन के पापा को हसन और हुसैन दौड़ कर गए, चिटाई बिछाई, बाबा को ऊपर लिटाया। जैसे ही ऊपर लिटाया, बस 10 सेकंड, जैसे ही घर वापस ला रहे थे, तो ज़ाहिरी बात है जिस बाप की बेटियां हों, बेटियों को बड़ी तकलीफ़ होती है। अली बेटी दरवाजे के पीछे खड़ी रो के कह रही थी, हसन मेरे पापा को जल्दी लाओ। मैं एक जुमला कहूँगा कि या अली आपको एक ज़रबत लगी है, लेकिन करबला में देखिए हुसैन को 13 ज़रबे लगी है। या अली आपकी पेशानी शिकायता हुई है, या अली करबला में हुसैन की पेशानी नहीं सर कलम हुआ है। अल्लाह